This man went to the worst place. दुनिया की सबसे मुश्किल जगह में यह आदमी आया। एक बहुत ही मुश्किल बस्ती, बहुत खराब हालत, मुसलमानों की बस्ती, और वो भी कसाईयों की, जिनको समाज ने अंत में जगह दी है। जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं उसमें सभी लोग इन लोगों से डरते हैं, और फिर वह उस समाज के आदमियों के पास ना जाकर उनकी कमजोरी यानी औरतों और बच्चों के लिए मेहनत करने लगा। सोचो, ऐसे समाज का एक पति जिसकी हर बात को मानने वाली बीवी या बच्चे अचानक बोल पड़े कि नहीं, आप गलत हैं, और वो पति जानता है कि कौन इसके पीछे है। मेरा मतलब है, उसे मौत से भी धमकाया गया, पर यह आदमी बिना रुके चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। जिंदगी में जीने के लिए चाहिए जो रंग, उन रंगों को लाया हूँ मैं, मुझसे ले लो। जिंदगी है क्या, है ये प्यार क्या, मौत भी है क्या, आत्मा को खुश करने के लिए हो सारे तेरे काम। जो भी है मेरा आज से तेरा, खुराक भी तेरा, बेचूंगा नहीं, मांगो प्यार से, दिल से दूंगा मैं। लबों पे सत्य हो, विश्वास मन में हो, प्यार दिल में हो, ऐसे जीने से दूर होंगे गम, मुक्त होंगे हम। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करे, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे, दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार, मेरे यार मेरे प्यार। और कभी ये सब अच्छा लगता है और फिर लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। क्या सोचते हैं आप उन लोगों के बारे में जो वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग? हाँ, कभी इन हसीन जीवन के अंत में उन विकलांग और बुजुर्ग लोगों के लिए इन घरों के सिवा रहने का कोई और सहारा नहीं होता है शायद। और कभी ये सब अच्छा लगता है, मगर कब तक, और फिर लगता है ये सब ठीक नहीं है। We talked enough, we sang enough, we planned enough, and we cried enough. Still the world didn't heal. Still we live in pain.
Oh yes, still the world in healing. Still we live in pain. We live in pain. We talked enough, we sang enough, we planned enough, and we cried enough. Still the world in still we live in pain. Betha. Still the world in still we live in pain. Why? Are you sure all the children are and will be safe in the world we are too busy making for them? Or you just don't care, or you can't do that? Are you sure no one will stray away your child's truthful dreams while you continue to hurt someone, somewhere, in some way? Or you just don't care, or you can't do that? Are you sure your grandson won't blame you for doing all the things for which he has to pay by his own life in the future? Or you just don't care, or you'd want to care from now? We talked enough, we sang enough, we planned enough, and we cried enough. Still the world in still we live in pain. Betha. Still the world in still we live in pain. Will you leave behind enough oxygen for all your future generations while you watch the cutting down of all the rainforests from your centrally air-conditioned homes? Or you just don't care, or you can't do that? Will you be serving humanity by switching off all the lights as you go out of here while you cannot do without all the luxuries and your huge buying list? Or you just don't care, or you can't do that? Will you ever heal the world singing in the best arenas and parties on earth while you are enslaved by the desire of every pleasure that comes at a cost? Or you just don't care, or you'd want to care from now? We talked enough, we sang enough, we planned enough, and we cried enough. Still the world in still we live in pain. Betha. Still the world in still we live in pain. So, you can impress God just by praying on namaz or even pujas, while you can't accept others who are different than what you are told is to be right. Or you just don't care, or you get to dare. So by running for happiness and pleasure, you can get them both, while you sneak away from all the sufferings that comes by to make you grow for both. Or you just don't care. So, you heal the world by doing social work, arranging seminars and shouting human rights, while you pleasure yourself with exotic wine diamond stays on the taxpayers' and donors' money? Or you just don't care, or you'd want to care from now? We talked enough, we sang enough, we planned enough, and we cried enough. Still the world in still we live in pain. Betha. Still the world in still we live in pain. Are you sure you can genuinely claim to love all the fishes, animals and birds while you can't stop eating or using the parts of their dead bodies? Or you just don't care, or you can't do that? Are you sure no more wars will kill those whom you love while you have wars going on in your own little hearts? Or you just don't care? And are you sure you can solve all the problems of the world and fill it with love while you do loveless charities, give alms and feel pity for your own fellow beings? Or you just don't care, or you'd want to start to love real love? Let's not just stop, let's not just sing, let's not just plan, and let's stop to cry. Come to me, I'll tell you how. Let's not just stop, let's not just sing, let's not just plan, and let's stop to cry.
You're welcome to our home, and then we'll do for the world. We'll heal all its pain. Not once again, many times. We'll do for the world. We'll heal all its pain. Forget charity, let's give love, real love. We'll do for the world. We'll heal all its pain. Okay, let's stop it here and let's be out to do. We'll do for the world. We'll heal all its pain. Real love. Give it and you will get it. प्यार दो, प्यार लो, मगर देखना वो असली हो. दिलेई पाबे आशोल भालोबाशा. क्या आपको लगता है कि लोग सच्चाई से वाकिफ होना पसंद करते हैं? कोई नहीं चाहता, सब परेशान है अपनी सच्चाई से. वे सब भागने की जगह ढूंढते हैं और यही वह मोड़ है जहां एक इंसान के सात्विकता और पैगंबरी भूमिका की पहचान होती है, कर्मनिष्ठता की, जिसे बहुत ही कम लोग निभा सकते हैं. इसके लिए हमें अति संवेदनशील होना पड़ता है और अपनी जिंदगी के लक्ष्य को भली भांति जानना पड़ता है. बहुत कम लोगों को अपनी जिंदगी के लक्ष्य का ज्ञान होता है कि क्यों भगवान ने मुझे पृथ्वी पर भेजा है, मेरी क्या जिम्मेदारी है दुनिया में. अगर हम सब भगवान की संतानें हैं तो हमारा क्या फर्ज है, क्या धर्म है एक दूसरे के लिए. क्या मैं अपने साथियों की रक्षा कर रहा हूँ? यहाँ एक भारतीय है जिसे बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त है, पता नहीं पर वह हर आम चीजों में ज्ञानी है. फिर पाश्चात्य और विदेशी लोगों के साथ भी उसका तजुर्बा गहरा है. मगर सबसे गंभीर प्रश्न है कि उसके दिल में क्या है, उसके मन में इतनी शक्ति कहाँ से आती है. मैंने सारी दुनिया के क्रिटिक्स, समाचारों और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलों की खबरें पढ़ी माई कर्मा के बारे में. मैं वहाँ गई नहीं थी और ना किसी से मिल पाई, मगर फिर भी मैं बहुत खुश और गर्वित थी कि इस फिल्म को वो सब कुछ हासिल हुआ. খাঁচা খুলে সে পাখি কোনখানে পালায়. Some people have कुछ लोगों का मानना है कि खुराक को पहली बार देखने से वह कुछ अलग सा लगता है दिखने में भारत के आम लोगों से, जिससे लोग उसे नॉर्मल नहीं समझते हैं, अपने से अलग समझते हैं. as normal. When he came for the first time, जब वो पहली बार मेरे घर में आया तब उसे देखकर मुझे नहीं लगा कि वह कोई फिल्म बना भी सकेगा, क्योंकि उसमें वो बात नजर नहीं आई. not the sort. খাঁচার ভিতর চিন পাখি কেমনে আসে যায়. His expressions were उसकी बातें इतनी साफ और सरल थी कि मैंने सोचा कि ये लड़का तो अकल की बात कर रहा है. I found that it was like a deliberate choice. मुझे पता लगा कि उसने जानबूझकर ऐसे कपड़ों को अपनाया है जो भारत की उत्तरी और दक्षिणी सभ्यताओं का मानो संगम हो. of India. मैं खुराक से मिला 2000 साल के सितंबर में. उस वक्त मैं किसी ऐसे इंसान या समूह की खोज में था जो इस दुनिया में मेरे हिसाब से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही थी. मैंने बहुत से समूहों के साथ काम किया है. हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश होती है, मगर उनके सरदारों में हर समय कुछ ना कुछ कमी पाया. जैसे बहुत से लीडर जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वे सब अपने काम के लिए एक पारिश्रमिक या सैलरी लेते थे. तब मुझे लगता था कि उन लोगों की मदद करने के मकसद में शायद इतना पाक या निर्मल नहीं है. दूसरे ग्रुप जिनके साथ मैंने काम किया, वहाँ पर लोग मेहनत से काम करते मगर सैटरडे और संडे को छुट्टी मनाते उस काम से, तो उन्हें अपने अच्छे काम से छुट्टी की और मौज मस्ती के लिए वक्त चाहिए था. फिर मुझे लगता कि उनके आदर्शों में कमी है. फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के लीडर 3-4 सालों के लिए काम करते, फिर वे अच्छे काम से थक जाते, दूसरे एनजीओ में चले जाते, वे उस काम को त्याग देते या फिर हार मान जाते. मुझे कभी ऐसा समूह या इंसान नहीं मिला जो लोगों के लिए अच्छा भी करता है, बहुत ही मेहनत करता हो, कोई सैलरी नहीं लेता हो और बहुत ही समर्पित हो अपने काम के प्रति. और जब मैं खुराक डे से मिला तो मुझे वो सब चीजों का उसमें होने का अनायास ही एहसास हो गया. वह साल 2000 में मेरे ही जैसा जवान था और बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा था.
मैंने जिंदगी भर जितने लोगों को जाना है उसमें से सबसे ज्यादा समर्पित है वो। इसके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं निकाला अपनी जुबान से, और इसका एहसास मुझे उसके साथ काम करते करते ही उसके काम को देखकर पता लग गया। फिर मैंने यह भी देखा कि भले ही वह सब लोगों से ज्यादा काम करता है, लेकिन एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है। वो कभी बीमार होने की शिकायत भी नहीं करता है, और उसने कभी अपने काम के लिए कोई पारिश्रमिक या सैलरी नहीं लिया। वह ईमानदार और मेहनती है, और इसमें मैं उसका साथ देना चाहता था। The film My Karma. ये जो फिल्म माई कर्मा है वह किसी इंसान का कर्म है उसकी जिंदगी में। ये सिर्फ इस जन्म का कर्म ही नहीं है, अपितु जन्म के आगे और पीछे का भी है, और इस दर्शन को हम उसकी फिल्म में साफ देखते हैं। मुझे ये फिल्म देखने से लगा कि यह उसकी आत्मा से आ रही है, जो शायद उसके मन में सालों से या जन्मों से हो, मुझे पता नहीं। उसकी उम्र का कोई भी इंसान कभी भी ऐसी बात सोच भी नहीं सकता है। मुझे पता नहीं उसमें जैसे कोई पैगंबरी ताकत हो, क्योंकि एक साधारण इंसान जो एक मध्यवित्त परिवार से ताल्लुक रखता हो, वह माई कर्मा वाले आदर्श कैसे ला सकता था। He could come out with that kind of ideas like My Karma. কেউ ভোগে কর্মে দোষে, আবার কেউ দেখো কেউ দেখো কেউ দেখো নিজ কর্ম করে। क्या वहाँ कोई बड़ी भीड़ जमा हो गई थी शूटिंग देखने के लिए? हाँ, बहुत बड़ी भीड़ थी, और पता है हर कोई यही सोच रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये सच का कोढ़ग्रस्त मरीज तो नहीं है। চারো বন্ধু আমি कुछ शॉट्स मुझे अच्छी लगी और मैं वहीं रुक गया और ये देखने लगा कि ये फिल्म किस बारे में है, क्योंकि जब मैं पहुंचा फिल्म ख़त्म होने वाली थी। तो मैं रुक गया और मैंने डायरेक्टर से बात किया और फिल्म के बारे में सवालात किए। तब मुझे लगा कि ये कोई असाधारण फिल्म है और इस फिल्म के लिए कुछ खास करना चाहिए। तब मैंने उससे कहा कि मैं इस फिल्म की तुम्हारी मदद करूँगा। मदर टेरेसा का पहला प्यार, निर्मल हृदय। तुम वहाँ काम करने जाते हो और वो वहाँ पे काम कर रहा होता है, और तुम उसकी विशाल मुस्कुराहट को देखते हो और हर वक्त दौड़ते हुए उसे काम करते हुए पाते हो, तो तुम्हें लगता है कि कुछ खास हो रहा है। Okay, where I need to shoot? मैं ये मानता हूँ कि हमारे इन पांचों इंद्रियों में से सारे इंद्रिय गलत हो सकते हैं। हम जो देखते हैं, वो जो सुनते हैं, वे असत्य भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी छू कर जो एहसास होता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। Can't be wrong. Then I came to know about this group called Amar. बाद में मुझे मालूम चला इस अमर निजर मायून के बारे में और खुराक उसमें क्या कर रहा है, और वह किस तरह से बहुत सारे काम खुद ही कर रहा है बस्ती में गरीब, लाचार और दुखी लोगों के लिए। यह अमर निजर करने का सोच और उसके विचारों ने मुझे आकर्षित किया, क्योंकि ये सबसे अलग है। अमर माने मेरा, मेरा अपना, यानी किसी और का नहीं, मेरा अपना। मैं उनके लिए अपना क्या दे सकता हूँ। That means not somebody else's, but my own. What I can give. अमर निजर में सबसे अच्छा चीज़ जो है वो मिस्टर कुरागडे का प्यार। कैसा प्यार? मतलब प्यार बोलते हैं कैसा? ओह गॉड, क्या ये बताना जरूरी है? नहीं बताना। आपको क्या लगा यहाँ? मतलब क्या, मतलब सबसे अलग क्या लगा? उनका अपनापन जो है ना, वो जो किसी से प्यार करते हैं ना, सच में एकदम टूट के प्यार करते हैं।
जो जिसको कभी भी मरते मर जाएंगे लेकिन कभी भी हम भुला नहीं पाएंगे उनका प्यार को। चाहे वो कुछ भी कर, हम ये नहीं बोलेंगे वो मेरे ऊपर एहसान किए, ये बोल के ना अपने आप को छोटा कर देंगे, ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो एहसान किए। हाँ, वो मेरे ऊपर एक इतना मेरा मदद किए, बहुत ही मदद किए, जो शायद हम तो अपने आप को समझते थे कि हम कुछ भी नहीं है, बस घर के चार दीवारी में ना सब कुछ, पूरी दुनिया मेरे चार दीवारी है। And here's Korak between two worlds. And this is the और यह है कोराक, दो दुनियाओं के बीचों बीच एक पुल। और यही है उसकी खासियत, क्योंकि किसी एक जगह में सीमित नहीं है, अब वो दुनिया भर में छा गया है वह। लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत हमारी जीवन में यही दो सबसे खास चीज है। और हम जिंदगी को समझ सकते हैं मौत को समझकर, कष्ट को समझकर, दर्द को समझकर और उन सब चीजों को समझकर जिससे दूर करने को सिखाती है हमारे पाश्चात्य सभ्यता। इस बात को समझकर ही हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आज के जगत में लोग सिर्फ अच्छी चीजें और खुशी की कोशिश में दौड़ रही है, मगर उनसे अच्छाई और खुशियां भी दूर भाग रही है। मगर उन्हें वो खुशी नहीं मिलती जिसे पाने के बाद उसकी चाहत ही खत्म हो जाती हो और उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। मैं कोराक से मिला जब मैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का मुख्य था, डीन था। हमारा जो निर्माताओं का समूह था, उन्होंने इंटरव्यू में तय किया कि इसे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग तरह का इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जो उन चीज़ों को हासिल करना चाहता है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था कि ऐसे इंसान को देखकर हम सब ने इंटरव्यू में फैसला लिया कि हमें उसे यकीनन लेना चाहिए। इस काम को करते हुए अब उसे कुछ साल हो गए हैं। वो एक निर्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है और आगे ही आगे जा रहा है। वो कितनी दूर निकल गया है अपने रास्ते में, हमें इसका ज्ञान नहीं, उसे ही मालूम होगा। जो लोगों को प्यार करते हैं उनके साथ दिलों का ताल्लुक होता है। उनमें मतलब जो प्यार करते हैं वो दिल से करते हैं, मगर जो दया करते हैं वो अपने आप को बहुत मतलब महान समझते हैं कि या तो अपने आप को महान समझते हैं, थोड़ा अच्छा समझते हैं, और जिसके ऊपर दया करे उनको अपने से कमज़ोर समझ रहे हैं कि हमारे पास जो है उनके पास वो नहीं है तो चलो थोड़ा दे दे। मगर प्यार और दया इनमें बहुत अंतर है। कुछ एनजीओ वाले मेरे पास अपना प्रेस का काम लेकर आते हैं, तब मैं एनजीओ वालों के और कोराक के काम में मूल अंतर को देखता हूँ। कोराक अपने सब काम को करता है प्यार के बल पर, पैसों के बल पर नहीं, और क्योंकि वह प्यार को ही आधार बनाता है इसीलिए वो कभी अपने काम से थकता नहीं है। उनका हमदर्दी, उनका प्यार एक ऐसा है कि वो हम लोग भुला नहीं पाएंगे। वो अजीब सा एक है। काश अपना माँ बाप भी ऐसा साथ नहीं दिया है। आज हम तुमको ये बात बता रहे, मेरा शौहर भी है तो वो भी इतना साथ नहीं दिया, जैसा कि हमको सर हमको बोलते हैं कि तुम आज तक का तुम जो भी कियो, गलत की, अच्छाई की, जो भी की, लेकिन अब तुमको अच्छाई का रास्ता में करना। अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारा 2 बच्चा है, उसका ऊपर असर पड़ेगा। तुम अच्छाई करो। बहुत मज़ा आता था, बहुत इंजॉय करते थे। अच्छे बंगाली डांस करते थे, फिर सिंगल बेल है वो करते थे। एकदम लगता था कि हाँ कहीं पे है जन्नत, हम समझते थे हम जन्नत में हैं। हर एक को वो सच्चाई का रास्ता बताते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, लेकिन इंसान का सोच गलत है। जो सोचता है गलत, जिसका दिमाग में गलत ख्याल रहेगा वो गलत ही सोचेगा उनके बारे में। He started living on the footpath. वो रास्ते के फुटपाथ पर रहने लगा। मुझे सच में
ऐसा लगा मेरे आंखों से आंसू निकल आए जब मैंने ये सुना, क्योंकि मैंने कभी ऐसे इंसान नहीं देखा था मेरी जिंदगी में, और वह भी इतनी छोटी उम्र में। तुम्हें पता है, उन अंधेरे और बहुत ही छोटे घरों में, झोपड़पट्टियों के, वो रास्ते के लोगों के साथ ही रहता था, और ये सब वो करता था सिर्फ उनकी जिंदगी और दर्द का एहसास करने के लिए। Feel what are their life like. अच्छे अच्छे घर के, बड़े बड़े घर के लोगों को तो सभी, कोई भी ऐसे ये कर सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी उसको प्यार कर सकता है, लेकिन मेन तो मतलब इंसानियत तो वही है ना, इंसान की इंसानियत तो वही है। जो गरीब बच्चे जो फुटपाथ पे रहते हैं, उसको अगर हम गले से लगाएं, प्यार करें, उसके लिए हम कुछ कर सकें, उसको कुछ दे सकें। हम भी पहले खुद के बारे में सोचते हैं औरों के जैसे थे, लेकिन जब से हम आमन नीचर में आए तो हमको समझ में आया कि दूसरों के लिए जीना, उसके लिए खुद को कुर्बान करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। यही चीज़ हम कुराक सर में देखें कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए जीते, दूसरों के लिए जीते, उनकी खुशी में ही उनकी खुशी होती है। खुराक वहाँ गया जहाँ सिर्फ धूल ही धूल थी चारों तरफ, एकदम इंसानियत के अंतिम छोर में गया वह, और शुरू किया उसने अपने हाथों से सब कुछ निर्माण करना, अपने अंदरूनी रोशनी का इस्तेमाल करके, अपनी आत्मा के एहसास मोहब्बत को, अपने आदर्शों को, मानो सब कुछ जो उसे काबिल बनाता, क्योंकि उसे यह भली भांति मालूम है कि समाज को किस चीज की जरूरत है। ये मेरा अपना एहसास था जिसने मुझे ये सब काम करने के लिए प्रेरित किया। वो ये है कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, तब मैं क्या करूं? मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता कुछ देने के लिए मुझे। तो मैंने अपनी आंखों को खोला कुछ ज़्यादा ही, और मैंने देखा चारों तरफ। मैंने पाया कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ज़रूरतमंद हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा, जैसे तुम्हारे जैसा कोई भी हो। अगर मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे सही सही मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, तो बड़ी आसानी से मैं जानता हूँ, सच्चाई से पूरी तरह से मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो वही चीज़ मैं दूसरों को दूँ। Enthusiastically, I know what I need, so let me go around giving it. खुराक हर वक्त दूसरों के लिए ही अपने सब कर्म करता है, इसलिए वह किसी को नहीं पता लगने देता जब वह मुसीबत में या किसी कश्मकश में होता है। वो सोचते क्या करे कि दूसरा का अच्छा हो, क्या बोले कि दूसरा समझ सके, क्या बोले कि दूसरा अच्छे रास्ते में चले, इसलिए वो अपने बारे में मत सोचो। जानवर भी तो अपने बारे में सोचते हैं, तो जानवर इंसान में फर्क क्या रहा? कितने का जो भलाई किए वो उनको सर को धोखा देके चल गया। सर अपना सब कुछ छोड़ के एक बच्चे की तरह, बेटा बेटी की तरह उनको रखते हैं, और फिर वो उनको धोखा देके चल जाते हैं। सर के ऊपर बहुत बीतता है, हम लोग खुद आँख से देखते हैं। सर कुछ दिन खाना नहीं खाते, अपने आप को कमरा में बंद रखते हैं और रोते रहते हैं बहुत। तो हम लोग को बहुत ये लगता है। फिर एक तरीका ये भी है कि अगर नहीं करेंगे तो आगे जो सर ये सब युग बनाना चाहते हैं इस दुनिया में, वो होगा कैसे? अगर इन लोग को नहीं पढ़ाएंगे, सब छोड़ देंगे, सब बंद करके चल जाएंगे, तो पूरा बच्चा का यहाँ पे लाइफ बिगड़ जाएगा। तो सर इसलिए सोचते रहते हैं कि हम कोशिश करते ही रहे, कोई तो होगा जो इंसान बन जाएगा। तुमसे है यह आशा, तुम भी बनो एक सात्विक करता। बंधु तुमसे है यह आशा, तुम भी बनो एक
सात्विक करता। तन मन धन कर तुम अर्पण, करो मेरे बंधु राष्ट्र आराधन। तीनों लोकों में वही यश पाता, जो बन पाता है निस्वार्थ करता। यश अपयश की चिंता न करते, क्रोध में भी वो शांत ही रहते। वैष्णव जन नाम उन्हीं का है पढ़ता, आजीवन जो सात्विक रहता। हृदय में अग्नि सत्यनिष्ठ की, सर पर बर्फ हो शांत चित्त की। सूर्य की भांति जग हित में जलना, सात्विक तुम्हारा रहे कर्मों का आईना। दीनों के प्रति माँ की ममता, सब दुखी जन के दुख वो हरता। बंधु तुमसे है यह आशा, तुम भी बनो एक सात्विक करता। तन मन धन कर तुम अर्पण, करो मेरे बंधु राष्ट्र आराधन। बंधु तुमसे है यह आशा, तुम भी बनो एक सात्विक करता। तुम भी बनो एक सात्विक करता। एक बच्चा असल में कभी भी कुछ पढ़कर नहीं सीखता है, वो देखता है और सीखता है। इसके लिए एक बच्चे को तुम जिस हालात में रखोगे वही आखिर में उसके जीवन का आदर्श बन जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने हालात को चुन नहीं सकते हैं, उसे तो उसके लिए कोई और पैदा करता है। अगर बच्चे ऐसे हालात में हैं जहाँ करप्शन है, हिंसा, स्वाभाविक आदर्शों और सभ्यता का अभाव है, तो उन बच्चों को आदर्शपूर्ण बनाने के लिए मात्र एक ही रास्ता शेष रह जाता है, और वह ये है कि एक आदर्शपूर्ण जगह उसे मिले जहाँ वो अच्छाइयों और आदर्शों के रास्ते पर चल सकता है और जीना सीख सकता है अच्छी तरह से। क्यों लड़कों को क्यों बाहर निकलना चाहिए? लड़कियां भी निकल सकती है। लड़कों को इतनी आज़ादी क्यों मिलती है? लड़कियों को भी तो मिल सकती है। दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। इसलिए एम्स में हम लड़कियां लड़कों दोनों को बराबर हक मिलता है। इसलिए हमें एम्स में आकर बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जान लेने के बाद कि क्या अच्छा है, क्या आदर्श जीवन है, कैसे सबके साथ पेश आना चाहिए, ऐसे हालात में रहकर जहां तुम इन आदर्शों को जी सकते हो। इसके बावजूद भी अगर एक बच्चा तय कर लेता है कि उसको अच्छाइयों से कोई लेना देना नहीं है और वो उसे नहीं मानना चाहता, इससे ज्यादा, इससे आगे तुम उस बच्चे के लिए और कुछ नहीं कर सकते। खुराक में क्या खासियत है, इसे पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है। सबसे पहला ये है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। हम सबको परवाह होती है हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, कैसे बात करें, किससे बात ना बोलें। वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता। एक बच्चे की जो मासूमियत होती है उस भोलेपन के साथ करता है हर चीज़ को जो वो करना चाहता है, और यही वो कारण है कि वो सब कुछ कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। खुराक ने चुना है सबसे मुश्किल हालात, जो दुनिया की नज़रों में तो मुश्किल है लेकिन भगवान की नज़रों में नहीं। उसने लिया है सबसे मुश्किल कागज, सबसे मुश्किल कलम, और चुना है सबसे मुश्किल चीज़ बनाने के लिए, और वह उसे चित्र बना रहा है। मैं सोचता हूँ यही बात उसकी महान है।
must learn to accept. हमें सीखना चाहिए अपनाना उस चीज को जिसे भगवान ने हमें देकर भेजा है। अगर मेरी सोच दुनिया के सोच से अलग है तो इसमें मैं विकलांग नहीं हो जाता, लेकिन मेरे चारों तरफ के समाज के लोग मुझे ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास होना चाहिए मेरी अलग सोच मेरी विकलांगता नहीं है। हम लोग भगवान के बारे में बात करते हैं और उसके ताकत के बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में हमें विश्वास नहीं है भगवान पर, क्योंकि अगर हम उस सच में विश्वास करते हैं कि भगवान को मालूम है हमारी इस सोच को जो आम लोगों से अलग है, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ भगवान की मर्जी से और उसके द्वारा ही की जाती है। वो इंसान उस चीज के साथ जिसे आज की समाज उसकी विकलांगता कहती है, वह उसकी खासियत है। इस चीज को मैंने नाम दिया है काले हीरे। काले हीरे सफ़ेद हीरों से ज़्यादा बेशकीमती होती है, और काले हीरे वो है जो हमारी आत्मा के अंदर होती है। कलयुग की पहचान पैसों की महत्ता से है, तो शायद इस युग के अंत में अभी वक्त हो गया है कि एक नई पहचान को तलाशने के लिए जो लोगों को समाज के साथ जोड़ती हो और एक रिश्ता बनाती हो। कोराक heads for a new matrix. He goes for love. I love you. आपको याद आ रहा? I love you. जब बड़े हो जाओगे आओगे मेरे पास? हाँ? आओगे? पापा के पास लेंगे, पापा के पास लेंगे। Now I quote Korak like it's not so difficult. अब मैं कोराक के शब्दों में कहूँ, ये एकदम मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने अंदर की सारी खराबियों को और गलतियों को ढूंढना और दूसरों के अंदर उनकी अच्छाइयों को ढूंढना, क्योंकि इससे कोराक कहता है कि आपस में प्रेम बढ़ता है। Not the other way round. Most of such places that I have been to. अधिकतर जगहों में जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है करने वाले और पाने वालों में अंतर। लाचारों को ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके लिए जो हो रहा है वह महान हो रहा है, और यहाँ उनको बराबर का दर्जा मिलता है। सोचो यहाँ पर कोई टीचर या स्टाफ आता है, उसे ये सोचने नहीं दिया जाता है कि वो कोई महान है या वो कुछ बड़ा काम कर रहा है। दीदी लोगों को और बच्चे लोगों को ज़्यादा ऊंची जगह दी जाती है यहाँ, और वो इस घर के बड़े हिस्सेदार हैं। आवन नीचे जो एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो जन्नत का बीज मतलब बनाने का कोशिश हो रहा है। इंसान को मतलब बहुत प्यार करता है, जिसे निस्वार्थ प्यार, वो किसी को भी प्यार कर सकता है, कोई भी हो, गरीब अमीर गैर मजहब, वो सबको अपना लेता है, ऐसा कि उसका बहुत वो अपना है। उनकी आंखों में जो सच्चाई है, मुझे लगता है कि जन्नत जरूर एक दिन कामयाब होगा दुनिया में। आज से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, आज से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, और सच बोलने की कोशिश करेंगे, और दुनिया के लिए अच्छा ही सोचेंगे, और अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। So at least you have one person. कोई एक इंसान तो है इस कलयुग में जिसने अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया है एक मोटर या इंजन के जैसे, जो अपने बारे में नहीं सोचता। शायद भगवान ने इस मोटर को बनाकर छोड़ दिया है इस दुनिया में, जो बस चलता ही रहता है बिना रुके। उसने हर चीज का मतलब और व्याख्या ही बदल दिया है। कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे प्यार करना है, उसकी अपनी व्याख्या है उन सब चीजों के बारे में। और मुझे लगता है कि उसकी यही सृष्टि करने की ताकत उसे कामयाब बनाती है। वो एक ऐसा मिसाल है जिसकी तरफ तुम्हारी आत्मा देखकर ये कह सकती है कि काश मैं कोराक जैसा बनना चाहता हूँ। हम हताश हो जाते हैं
जब हमारे साथ कोई खराब घटना घटती है, मगर हम ये नहीं एहसास कर पाते हैं कि ये जो खराब चीज हमें मिल रही है वो सामने के रास्ता को साफ कर रही है। अगर मैंने जिंदगी में तरक्की की है तो मैं अपने चारों तरफ भी तरक्की देखना चाहता हूँ। अगर मैंने अपने अंदरूनी जिंदगी में तरक्की नहीं की है तो मैं अपने चारों तरफ सिर्फ बुराई ही बुराई देखता हूँ और फैलाता हूँ। बुराई दुनिया में नहीं है, बुराई तो सिर्फ मेरे अंदर है। उसने मुझे बताया कि उसका एक पिता महात्मा गांधी है और एक माता मदर टेरेसा है। वो इन दोनों को अपनी माता पिता के जैसे ही मानता है। ये बड़े प्यारे लोगों का रिश्ता है। इससे ज्यादा अगर वो कामयाबी चाहता है या उसका कोई प्यार करने वाला उसे कामयाब देखना चाहता है तो वह तभी होगा अगर वो इसको फैलाएगा। इसे फैलाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा कि उसने क्या हासिल किया है। और ये खुराक का काम करने का तरीका बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वह चुपचाप काम करने वाला शख्स है। सिर्फ दो ही विकल्प हम सबके पास होती है। जो काम हमें मिले या तो उसे खत्म करो या पूरे प्रेम से करो। जहाँ पर हालात सबसे ज्यादा मुश्किल हो, जान लो वहीं पर तुम्हें अपनी आत्मा की सारी संतुष्टि मिलेगी। मैं खुद से और भगवान से ईमानदार और सच रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये ज्ञान है कि अगर मैं सच रहूंगा खुद से और भगवान से तो एक दिन मेरे सच्चाई का एहसास लोगों को होगा ही। It's something which is absolutely selfless. ये एक ऐसा चीज है जो पूरी तरह से निस्वार्थ है और इसके लिए जरूरत है अपनी आत्मा की अटूट शक्ति। मेरा मतलब है तुम्हें खुद को भुलाना पड़ेगा और इसी में इसकी पूर्णता है। और खुराक डे यही चीज को कर रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो इस पर काम कर रहा है वह निसंदेह ही सफल होगा इसमें। प्यार पर है यकीन, प्यार के स्वीकार पर है यकीन। मुझको मेरे प्यार पर है यकीन, प्यार के स्वीकार पर है यकीन। I have all the faith in my love, that one day you will feel my love. I have all the faith in my love, that one day you will feel my love. तेरा रह जाए किसी हालत में कच्चा, जो चाहेगा कर पाएगा गर तू होगा सच्चा। प्यार न तेरा रह जाए किसी हालत में कच्चा, जो चाहेगा कर पाएगा गर तू होगा सच्चा। मुझको मेरे प्यार पर है यकीन, प्यार के स्वीकार पर है यकीन। तुझको तेरे प्यार पर क्या है यकीन, जो नहीं है तो इस पल से कर ले यकीन। तुझको तेरे प्यार पर क्या है यकीन, जो नहीं है तो इस पल से कर ले यकीन। I have all the faith in my love, that one day you will feel my love.
की खातिर जो मरते हैं वो जीते नहीं, प्यार की खातिर जो जीते हैं वो मरते नहीं, प्यार की खातिर जो मरते हैं वो जीते नहीं, प्यार की खातिर जो जीते हैं वो मरते नहीं, प्यार में जो खुद को मिटा ना सका, इस जगत में वो खुद को ना पा सका, प्यार में जो खुद को मिटा ना सका, इस जगत में वो खुद को ना पा सका। So many came and so many left this world, but all true lovers have become immortal. So many came and so many left this world, but all true lovers have become immortal. मुझको मेरे प्यार पर है यकीन, प्यार के स्वीकार पर है यकीन, I have all the faith in my love, that one day you will feel my love. आए गए हैं कितने लोग इस जहान में, आए गए हैं कितने लोग इस जहान में, लेकिन प्यार करने वाले हो गए हैं अमर, हो गए हैं अमर, लेकिन प्यार करने वाले हो गए हैं अमर। आए गए हैं कितने लोग इस जहान में, लेकिन प्यार करने वाले हो गए हैं अमर, हो गए हैं अमर। आत्मा को खुश करने के लिए हो सारे तेरे काम, जो भी है मेरा आज से तेरा, खुराक भी तेरा, बेचूंगा नहीं, मांगो प्यार से दिल से दूंगा मैं, लबों पे सत्य हो, विश्वास मन में हो, प्यार दिल में हो, ऐसे जीने से दूर होंगे गम, मुक्त होंगे हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करे, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म, जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहाँ के गम तू सारे, दुख सारे, मेरे यार मेरे प्यार, मेरे यार मेरे प्यार।